All right. So, in the previous class, we were studying about BERT, that is bidirectional encoding representation transformer. And we invested at least 2 to 3 sessions on understanding what is BERT and how it works. So, the idea of this language model is to have encoder which is bidirectional in nature. Okay, that can interpret the text in left to right and right to left. Okay, we also studied that during training you give masked data so that we want to make BERT model kindly identify what should be the masked term. So BERT is a large language model. It comes in different versions, and obviously, since I said it is LLM, so it has been trained over huge amount of data. Okay, and in this we do keep 15% of the data as masked. During training we expect from the model to tell what a word there should be. We also mentioned here that positional encoding, segment encoding are important terminologies in BERT. So we try to identify what is the position of the token and what is the segment or the sentence of the token. The overall goal to interpret the data from either of the direction is to understand the context. Okay, understand context. Fine. I need to know the meaning relationship between the words because there could be a confusion in what regards a word in a sentence is used. So from both the directions, left to right, right to left, if we do process, this will help a model to understand. We did apply the same thing in by LSTM also. Okay, by LSTM also. However, the working of BiLSTM and BERT, there is a difference, and transformer proved to be better than sequential model. Okay, so in case of BERT, again the process we do start like with tokenization only. We do perform word piece tokenization. That is something new which I haven't told previously. I will let you know today. Word piece tokenization. Okay, that's what we have to give to the encoder representations.
encoder representation. All right, this thing happens in BERT, and output is produced. If you ask a question, "Hello, how are you?" the model will say, "I am fine." So in 2000, like 17, 18 were the years we started thinking about LLMs and text generation. Okay, because here attention mechanism came related to how we can interpret in the text, and obviously transformer model which is based upon this encoder, and we already studied auto encoders, how they do produce the content. Okay, that is encoder decoder representation. So this BERT is an encoder representation. Okay, it comprises of encoder. Okay, so these things are helping us. Fine. Now I want to show you some more examples along with the code and attention mechanism I need to focus upon, though I have already explained in the previous class. And since we are moving towards the transformers now, I need to talk about what are the transformer, because here also you are talking about BERT, that is bidirectional encoder representation transformer. So I need to talk about the transformer, its architecture, its component, its working, everything I need to talk about. Okay, so we will study them in detail. Okay, now let me share my entire screen. Okay, so here it is. See, this is about BERT. Okay, most of the things we have already covered in our previous sessions. Okay, the full form of the BERT just I told recently. Why it is important? Because it consider the text in bidirection. Okay, so if there is a sentence, "She plays the violin beautifully," I need to interpret from here also, I need to interpret from here also. Okay, in either of the directions, left, right to left, both. Okay, we have to consider interpretation has been done. Okay, and every meaning of the word is been correctly identified and what context it has been used. That's the identification of this model. Okay, so it is based upon transformer. So transformer is also a neural network architecture that is incorporating self attention mechanism. Okay, and the issue with the RNNs, actually recurrent neural network, was it considered the weight of each and every term as same. However, in LSTM by LSTM, we do have a modifications, like, but in this self attention mechanism, it allows BERT to weight the words which are much more significant according to the context, both preceding and succeeding. Okay, those who are important, I need to decide the weight accordingly. Okay, this is the concept behind self attention. Okay, so if I consider a sentence again, "The lead singer will lead the band." If we use traditional models, they will struggle. Okay, because here lead is different, here lead is different, they will struggle. In the first, lead is a noun, in the second, lead is a verb. Unless and until we don't process the text from both the directions, the model will struggle to understand. Okay, so such kind of pre-processing happens in BERT. This is the diagram. Okay, we give the input, and in the previous class I already explained about the tokens, CLS and SCP. So CLS is classification token,
Okay, and SCP separator. Okay, so we do tokenize our sentences, and we have to add some additional tokens as per the requirement of the model. So in the starting we give CLS, at the ending we are going to give the separator, and this is how the training is performed for the BERT. How are dash doing today? There is a word, how are you? But I have marked you. Okay, and then I gave it to the BERT marks language model. And it is a duty of the BERT to identify what word here it should be, you, they, your, the word which is having the highest probability, that will be selected. Okay, fine. So the thing is, BERT model is already trained on huge amount of data. The only thing is you have to perform the fine tuning of such kind of models as per the task you want to utilize it. Okay, and GPT and all such concepts na came from like this only. They are filled with a huge amount of data. Then they perform the fine tuning of the model. Okay, now I already told this is how the steps starts. You perform the tokenization, but today I told you that we perform here word piece tokenization. That means it split the words into smaller pieces. Tokenization, word piece tokenization. Okay, that is one more step. For example, if I say running, running will be divided into run and NING. This is word piece tokenization. So this helps to handle tricky words and ensures the bird doesn't get lost to unfamiliar words. There might be some unfamiliar words which are mentioned, but we want a model to understand. So if you, the thing is, if you feed better, okay, तो वो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट. ओके, तो आपको गार्बेज इनपुट नहीं करना. यू डू नॉट हैव टू गिव द गार्बेज. You have to feed the data which is refined, appropriate. Then only you can expect some model to give you the proper result. So better understanding के लिए, tricky words को handle करने के लिए, you use word piece tokenization. जैसे कि again I do have one more line. Chat GPT is fascinating. इसके वर्ड पीस जो टोकन्स होंगे, चैट, देन हैश 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 जी, हैश हैश पी टी इज फैसिनेटिंग, देन फुल स्टॉप. इन जनरल वी डू से दैट कि आप chat gpt is fascinating, these are the three tokens, but we are doing one more. Okay, that is word piece tokenization. और फिर उसमें you are going to add the special tokens. I already told CLS आगे लगाइए, SCP you have to put at the end. ओके, एट द एंड जैसे सेंटेंस खत्म हो रहा है एंड फिर वापस से सेंटेंस चालू हो जाएगा. फाइन, तो जैसे यहाँ पर है चैट जीपीटी इज फैसिनेटिंग, वी विल स्टार्ट विद द सीएलएस, देन चैट, देन जी, देन पीटी, देन इज फैसिनेटिंग, फुल स्टॉप, सेपरेटर. ओके, एटलीस्ट द मॉडल शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्टिंग, फ्रॉम वेयर इट इज एंडिंग, ये आपको काम करना है. देन मास्किंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू. Okay, that you have to mask the words, and you want a bird to learn to predict those words from their context. Okay, we want bird to answer for that. Okay, so if the sentence is the cat is on the mat, and if you mask a sentence the dash is on the mat, we want bird to answer for that what it should be. Okay, fine, that's the process, and we have already discussed. Now let me show you the code also which I made on the Kaggle. सर Okay, yeah, please say. सर तो क्या हम इसको डेटा देने से पहले वो एनएलपी नहीं लगाते हैं, वो लेमेटाइजेशन वगैरह?
देखिए क्या कमिंग और है, लिमिटेड। नहीं, हाँ। देखिए, इसमें ज़रूरत नहीं है। ओके, देवेश, द क्वेश्चन यू आर आस्किंग दैट डू वी क्लीन आवर डेटा एंड गिव टू द मॉडल? नहीं, ठीक है, वी डोंट डू दैट। ओके, ओके। वैसे ठीक है, आपका एक क्वेश्चन जो ये रहा, समझ सकते हैं। डाउनस्ट्रीम टास्क यदि आपको करना है, वहां पर आप यू कैन डू, इफ यू नीड टू परफॉर्म द डाउनस्ट्रीम टास्क यानी कि सेंटिमेंट एनालिसिस, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, वहां आप अप्लाई द कंप्लीट योर प्रोसीजर फॉर डेटा क्लीनिंग एंड देन हैंड इट ओवर टू द बर्ड फॉर द क्लासिफिकेशन, आप पहले से रिफाइन करके दे दें। ओके, तो डाउनस्ट्रीम टास्क में यू कैन डू। ओके, समझे आप? जैसे हम अभी तक वट हाँ एवर सर। वी हैव डन, हमने टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करा, सेंटिमेंट एनालिसिस करा, स्पैम एंड हैम क्लासिफिकेशन वी डिड, sarcasm डिटेक्शन, दे आर द डाउनस्ट्रीम टास्क फॉर सच काइंड ऑफ लार्ज लैंग्वेज, उनको डाउनस्ट्रीम बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की टर्मिनोलॉजी में। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मॉडल्स हैं आपके टेक्स्ट पर, तो आप बोलो कि सर क्लीनिंग कर लो, ये कर लो, ये तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है ना, इनको पता है, दे ऑलरेडी नो व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स देयर शुड बी, पता है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट, अब आप जो है डेटा क्लीनिंग यू कैन डू एंड देन यू कैन हैंड इट ओवर टू द बर्ड फॉर द क्लासिफिकेशन, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, दैट विल वर्क। ऑलराइट, सो दे आर ऑलरेडी एबल टू अंडरस्टैंड सच काइंड ऑफ वर्ड्स। ठीक, फाइन, नाउ आई एम हैविंग अ कोड। सर तो हम बहुत लार्ज कॉर्पस फीड करते हैं तो यस, इसके लिए वेरी लार्ज जरूरत कॉर्पस वी डू फीड। और मास्क कर देते हैं फिर हम। हाँ, उसको मास्किंग करते हैं ताकि वो वर्ड समझे। ओके ओके। ठीक है, यही ये काम हो रहा है। बेटर। मैं अभी अपने जो 2 to 3 सेशंस विच वेंट ऑन द बर्ड, यही काम हो रहा है कि मॉडल की ट्रेनिंग में टू अंडरस्टैंड व्हाट वर्ड शुड बी। ठीक है, all right, so in this particular notebook what I did is, okay, ये तो ऑलरेडी कीगल में रहता ही है कोड। आई टुक दिस थिंग फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट बर्ड टोकनाइजर। फर्स्ट यू हैव टू टोकनाइज, स्टेप नंबर 1 टोकनाइज ही होगी। आपने यहाँ टोकनाइजेशन यू आर डूइंग, यू आर नॉट सेइंग कि यहाँ लेमेटाइजेशन एंड ये एंड वो ना, अभी ऐसा कोई मैटर नहीं है। You feed the text, any kind of text to the model, like for example here I am mentioning BERT processing, pre-processing is essential. This is a sentence I am giving. Okay, let me increase the size. Okay, so what I am giving here is BERT pre-processing is essential. So BERT जो है ये ट्रांसफॉर्मर का है। ओके, वहीं से ही आई एम इंपोर्टिंग टोकनाइजर एंड आई एम यूजिंग प्री ट्रेन्ड मॉडल ऑफ बर्ड टोकनाइजर, दैट इज बर्ड बेस अनकेस्ड। तो बर्ड बेस अनकेस्ड का मतलब ये है कि इसे केस से कोई लेना देना नहीं है, इट्स जनरल लाइक लोअर केस में ही समझेगा ये, इट विल कंसिडर द टर्म्स इनटू द लोअर केस। यदि आप यूज करते बर्ड बेस केस, तो वो अपर केस एंड लोअर केस को अलग अलग इट डू कंसिडर सेपरेटली। However, we are using here BERT base uncase, so it's a base model or the basic model. We are having the base model, we are having intermediate model, we are having a huge model also, है ना। वो आपके डिपेंड करता है कि कितने आपने जो है पैरामीटर्स पर मॉडल को यू हैव यू ट्रेंड, हाउ मेनी पैरामीटर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये बेसिक मॉडल है, बेस मॉडल। सो यू कैन check the details about the BERT from the Hugging Face official website, so there it's all mentioned, पूरा है, सारे मॉडल्स हैं। ओके, तो आपने टोकनाइजर लिया एंड यू गेव द टेक्स्ट एंड यू आस्क्ड टू टोकनाइज इट, और आपने ये टोकन प्रिंट करे हैं उसके। ठीक है, तो पहले मॉडल वगैरह लोड हुआ तो इट टुक दिस मच टाइम एंड यू कैन सी दैट द आउटपुट विच आर कमिंग आर व्हाट, वर्ड पीस tokens. It's not like just a simple tokens which you did or learned previously. ये वर्ड पीस tokens है, देख लीजिए आप, बर्ट प्रेप आर ओ सी एस एस आई एन जी हैश हैश भी लगाया, इस असेंशियल फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप अभी आपने क्लीनिंग नहीं करा था, तो फुल स्टॉप को भी एज अ टोकन रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, वो तो इट्स क्वाइट क्लियर, वो तो उनको कंसिडर करेगा एज अ टोकन। ओके, फाइन।
तो यहाँ पर वर्ड पीस टोकन्स इंफॉर्मेशन आई गेव दैट इट्स अ सब वर्ड टोकनाइजेशन, टोकनाइजेशन का भी फर्दर टोकनाइजेशन दैट इज कॉल्ड एज वर्ड पीस. Okay, it is a method which is used particularly in BERT. The word piece breaks down words into smaller units or the subwords to handle vocabulary problem in language models, ensuring rare word can be still processed even if they don't appear in the training corpus. ठीक है, बात समझे? अभी आप जो मुझसे पूछ रहे थे ट्रेनिंग के लिए ह्यूज डेटा पर करा है, बट देर आर सर्टेन रेयर वर्ड्स विच मे गेट स्किप्ड. Okay, it happens. And also, many of the time user can feed any kind of input. वो wrong भी input करता है user, कुछ भी word wrongly लिख देता है वो user, but still my model is able to understand. वो word piece tokenization से समझ जाता है that what it word should be. ठीक है, ये इस इट्स अ काइंड ऑफ अ लेवल, या हम कहें इंटेलिजेंस इज अवेलेबल जो आपने दी है. इंटेलिजेंस भी देने का भी हमारी एल्गोरिदम छुपी हुई है. Okay, as much as better you are dividing the data and giving it to the model, it will understand. Okay, so we do perform sub-word tokenization instead of treating the each word as a unique token. We are not going to consider each word as a unique token. We split the words into subwords. That is the word piece. So these units are part of words that appear frequently in the training data, helping. तो आप यदि टुकड़े कर दोगे ना तो वो ट्रेनिंग डेटा में आ रहे होंगे वो. ठीक है, हो सकता है कुछ पोर्शन नहीं, कुछ पोर्शन तो आ ही रहा होगा. ठीक है, they are appearing in the training data. That will helps to reduce the vocabulary size. Word piece builds vocabulary from common subword units starting from individual characters. It merges the most frequent pairs or the subwords until the desired vocabulary size is reached. अब जैसे यहाँ पर है कि हाँ, word like running might be split into run and hash hash ning. Hash prefix indicates that hash hash ning is a subword that appears after another part of a word, है ना. hash इसलिए लगा रखा है कि पहले run आया है and then hash hash ning आया है. That's the reason to understand that it's a part of a previous word, so it's a subword of the previous word. That is why hash has been put. And there are certain words जो कि हमारी vocabulary के बाहर भी हों, out of the vocab, OOV. Okay, so the word piece can break down the words into smaller units. It can handle the unseen or the rare words also during training. Okay, and it will try to understand them. और यदि नहीं है तो अपन उसको OOV मार्क कर देते हैं, आउट ऑफ द vocab. जो नहीं समझ में आया OOV वी कैन मार्क करते हैं. कोशिश फिर भी आपका मॉडल ही करेगा. इट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड that what that word should be. However, it's not trained on that particular corpus जो word है नहीं है, but still by doing this splitting of the data, by performing word piece, it will try to understand. Okay, fine, ये काम हो रहा है. तो vocab कंस्ट्रक्ट कर रहा है. इट विल ट्राई, ये वर्ड पीस करने के बाद ये जो आपका ये लिस्ट बनी है, इट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ वोकैबुलरी. और ये नया नहीं है आपको. मैंने आरएनएन के अंदर एलएसटीएम बाई एलएसटीएम एवरीवेयर आई टोल्ड वहां भी वो कैब ही तो क्रिएट होता है. ओके, ये कॉन्सेप्ट उसी को आगे इलाबोरेट करा है, बट वहां पर वर्ड पीस की बात नहीं हुई थी. देयर इन केस ऑफ आरएनएन, ओके, एलएसटीएम बाई एलएसटीएम ऑल दोज ना, वहां पर हमने कहा था टोकनाइज करिए. टोकनाइज, we are not talking about sub या word piece tokenize, just only tokenize. So consider each and every word and then create vocab. vocab क्या होता है? I told ना fit to text या fit on text करके बोला था मैंने. ठीक है, that means आपको इसे integer representation देने हैं. That is the way you create a vocab. Okay, that means you create a table. Okay, I got this integer representation and this is a vocab or a word. Okay, तो ये create करेगा वो, इसको कहते हैं vocab. ऑल राइट, वोकेबलरी बिल्डिंग होगा. ये वहीं से लिया है कॉन्सेप्ट. हाँ, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो नहीं समझ में आते, तो उसके लिए वर्ड पीस टोकनाइजर इज अ बेटर अप्रोच. ठीक है, वो यूज करा है यहाँ पर. फाइन. So efficient vocabulary, more general, you can read out. That's very easy. And I took uncased word base uncased. The reason is okay, यहाँ पर क्या हो रहा है, लोअर केस लेकर चल रहे हैं. केस होता तो अपर एंड लोअर दोनों को डिफरेंशिएट करता वो.
Okay, so bird base uncase base means is smaller version. I already told you जहाँ पर only 12 layers हैं of transformer block. Okay, there are 12 layers and 768 hidden units. That is the dimensionality of the output. Okay, and 12 attention heads per layer. 110 million parameters. Okay, अब ये देख रहे हैं ना आप 110 million parameters. तो heavy model हो गया ये. So 12 layers and 768 hidden units. That means dimensionality of the output and 12 attention layer है यहाँ पर. ये आपका आर्किटेक्चर बनेगा बर्ड बेस का. Uncase में ignore the case of the word during pre processing. It converts all the text is converted to lower case. Okay, तो हमारा अनकेस ही है ना, तो ये मैं कह रहा था कि लोअर केस में चलेगा सब हिसाब किताब. ऑल राइट, सो ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक 12 हो गए, हिडन साइज हो गया 768 का, 12 अटेंशन हेड है, वोकेबलरी साइज 30,000 की है. ओके, एंड मैक्सिमम सीक्वेंस है आपका 512 का ऑफ द टोकन्स. दैट्स व्हाट इट कैन टेक. तो आपसे जब आप फॉर एग्जांपल एलएलएम के अंदर भी बहुत बड़ा कंटेंट इफ यू डू कॉपी एंड पेस्ट, तो वो कई बार बोल देते हैं ना कि ये तो मैं डील नहीं कर पा रहा. वाई? क्योंकि इफ यू टेक lot of data, copy it and paste it on chat gpt and ask for some prompt, तो भाई उसको लिमिट है टोकन करने की, लिमिट है कितने टोकन्स इट कैन क्रिएट. ओके, यदि आउट ऑफ द टोकन जा रहा है वो, ओके, तो फिर इट विल टेल यू आई कांट सॉल्व दिस थिंग, आप इसको छोटा करिए, मेरे पास लिमिट्स हैं. तो यहाँ पर दे टोल्ड कि मैक्सिमम सीक्वेंस अगर 512 टोकन्स को इंटरप्रेट कर सकता है. दैट इज द साइज बर्ड कैन हैंडल. इफ यू गिव समथिंग मोर देन 512 तो वो बता देगा आउट ऑफ कंटेक्स्ट, आउट चला गया ये, आई कांट वर्क. ओके फाइन, तो ये अनकेस है BERT का small model. So we can use it for text classification, NER, named entity recognition, question answering, sentence pair task. So ये applications I already told in the previous classes, बता चुका हूँ मैं applications. Sentence pair भी आपको बता दिया था ना, sentence A and sentence B. So you have to give for training 50% of the data with correct sentence and 50% you have to give for the wrong one. Okay, and you have to ask to the model whether this is correct or not. पढ़ लिया आपने सेंटेंस पेयर भी, 50-50 का करेक्ट था एंड फिर 50-50 का इनकरेक्ट था. ओके, तो इस पर आपने ट्रेनिंग करा एंटायर, एंड यू आर आस्किंग फॉर दैट कि बताइए ये आफ्टर सेंटेंस ए वेदर दिस सेंटेंस बी इज करेक्ट और नॉट. तो सेंटेंस पेयर भी चेक कर लेना. सेंटिमेंट एनालिसिस, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, मास्किंग, ये तो हो ही रहा है. नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन का मतलब रहता है कि अ वर्ड does it means to be name of a person, place or location, either currency or money, whatever. ठीक है, that is called as NER, named entity recognition. That's a fundamental concept in NLP. ठीक है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एनएलपी का नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन. ऑलराइट, ठीक है, तो ये वाली भी बात है. क्वेश्चन आंसरिंग भी कर सकते हैं. ओके, फॉर टास्क लाइक स्क्वाड द मॉडल आंसर द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द प्रोवाइडेड कंटेक्स्ट, ये भी कर सकता है. क्वेश्चन आंसरिंग तो एलएलएम्स में तो बना ही रहते, क्वेश्चन आंसरिंग भी हो रहा था. ठीक है, तो आपने टोकनाइजेशन यू डिड परफॉर्म्ड, एंड आफ्टर द टोकनाइजेशन यू कैन यूज योर बर्ड मॉडल फॉर क्लासिफिकेशन, कर सकते हो. ठीक है, तो ऑलरेडी प्री ट्रेंड है. अब जैसे यहाँ पर क्या किया, आई imported BERT for sequence classification, BERT tokenizer I took. So this is my BERT based uncased tokenizer. This is the my classification model. Again, BERT based uncased only. ये प्री ट्रेन जो मॉडल है that is used for tokenization also and that is used for classification also. And here I gave a text. The movie was amazing. ठीक है, I did perform the tokenization of it and I returned the tensors for it. ठीक है, उसका टेंसर रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा आपको, टेंसर्स में उसको कन्वर्ट करके देना पड़ेगा. एंड दैट टेंसर्स यू हैव टू गिव इनपुट एज अ मॉडल, मॉडल को देना पड़ेगा. देन मॉडल विल गिव यू एन आउटपुट. ठीक है, एंड देन द रिजल्ट विल बी लाइक लॉजिट.
क्लासिफिकेशन करना है ना, तो लॉजिट फंक्शन सिग्मोइड होता है ना, 0 और 1 वाला. Okay, so you have to apply the logit function to it and you have to print the prediction accordingly. ठीक है, ये हो गया. सो लेट मी अगेन बैक गेट बैक टू इट. यहाँ पर मेंशन है फाइन ट्यूनिंग ऑफ द बर्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क. यही हमने अभी जो है इसको यूज करने के लिए टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए बर्ड को अप्लाई करने के लिए हम फाइन ट्यूनिंग का इस्तेमाल करेंगे. एंड फाइन ट्यूनिंग बिकॉज दिस मॉडल इज ऑलरेडी ट्रेन्ड ऑन ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, सो यू डू नॉट हैव टू वरी फॉर दैट. ओके फाइन. ये डायग्राम है, पहले भी आई डिड एक्सप्लेन यू फॉर दिस थिंग कि ड्यूरिंग pre-training you give unlabeled pair of sentence A and sentence B. You do perform the masking, ये भी कर देते हैं आप. You give it to the encoder representation. ये आपका BERT है, ठीक है. ये आपने CLS दिया, फिर E1 EN देन सेपरेटर देन E1, तो ये एनकोडर है आपका दिया. एंड फिर ये पूरा एनकोडर रिप्रेजेंटेशंस हैं, दे आर कनेक्टेड. ये देखिए आपको यहाँ पर एनएसपी यानी कि सेंटेंस प्रिडिक्शन, नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन, या मास्क एलएम या मास्क एलएम, दैट इज द मास्क वर्ड प्रिडिक्शन. तो ये सब आपको जो है देखने को मिल सकता है बर्ट के अंदर. एंड यू कैन परफॉर्म द फाइन ट्यूनिंग ऑल्सो फॉर दिस पर्टिकुलर बर्ट मॉडल for multilingual named entity recognition and squared also I told. That is आपने अभी पढ़ा ना squared, what it can do in the squared. क्वेश्चन आंसरिंग भी हो गया था एंड देन स्क्वायर्ड जो आपने करा, हाँ ये वही है क्वेश्चन आंसरिंग के लिए. मॉडल कैन आंसर ऑन द बेसिस ऑफ कंटेक्स्ट प्रोवाइडेड, तो दैट इज स्क्वायर्ड. ओके फाइन, ये सब काम हो सकते हैं, ठीक है, फाइन ट्यूनिंग करने पर. ऑलराइट. तो भाई बर्ड बेस में लार्ज में कई वर्जन में आता है, इट्स अवेलेबल. बर्ड कैन बी यूज एज अ लैंग्वेज एक्सपर्ट. ओके. एंड वी कैन फाइन ट्यून इट फॉर आवर स्पेसिफिक टास्क, जिसको मैं डाउन स्ट्रीम टास्क बोल रहा हूँ आपके लिए, ये रहा, इट्स अ डाउन स्ट्रीम टास्क. ठीक है, वी कैन फाइन ट्यून द बर्ड फॉर डाउन स्ट्रीम टास्क, जैसे कि सेंटिमेंट एनालिसिस कर लिया, एनईआर कर लिया, ये ऊपर यही काम कर रहे थे. नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस आप डाउनस्ट्रीम टास्क के लिए कर सकते हैं, ठीक है. एंड हियर इज द कोड, जैसे क्लासिफिकेशन एक करा है तो हियर इज द कोड फॉर इट. ओके फाइन. तो भाई सीधी सी बात है, बर्ट का द वन थिंग विच वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एज एन आर्किटेक्चर फॉर द बर्ट. यस आदित्य, आज द क्वेश्चन. यस, एनी डाउट प्लीज लेट मी नो. सर ये फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं तो उसमें जैसे नंबर ऑफ इनपुट टोकन लिमिट है, तो फाइन ट्यून कर रहे हैं तो उसमें इंक्रीज कर सकते हैं नंबर ऑफ इनपुट टोकन अपने देखिए अकॉर्डिंग. वो 512 जो टोकन्स हैं वो इनपुट टोकन्स हैं या आउटपुट टोकन्स हैं, आर यू श्योर अबाउट दैट? ये देखिए मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ इनपुट सीक्वेंसेस हैं 512, ठीक है, बिल्कुल यस सर. जो बात है 512 इनपुट टोकन्स आपने बोला ही हैंडल कर सकता है. ओके. अब आप कह रहे हैं सर इंक्रीज करना है फाइन ट्यूनिंग में, तो आप ये देखें आर्किटेक्चर जैसे बना होगा उसके अंदर उतनी जो है आपका टोकन की लिमिट मेंशन होगी आर्किटेक्चर के अंदर. ओके, मैक्सिमम इतनी ही लिमिट होगी, ये डिफाइन कर चुके हैं टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन जो आपके बर्ड बेस के हैं. ऑलराइट. यदि आपको इंक्रीज करना है तो आई गेस यू आइदर यू हैव टू चेंज द मॉडल. देन बेस के लिए तो यही टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन है इफ यू आर यूजिंग. Okay. ओके. Means we have to do the again pre-training on the longer input हाँ, sequence. लॉन्गर इनपुट सीक्वेंस वो करना रहेगा. ओके. उसका Okay. टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन विल बी डिफरेंट. ये तो स्मॉल मॉडल है, बेसिक मॉडल है, तो इसका इतना ही टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन है. Okay sir. ऑलराइट. तो ऐसा हमें समझ में आता है देखने पर, ठीक है. सो आई वांट टू अगेन हाईलाइट द क्वेश्चन एंड व्हाट हैपेंड इन द एंटायर प्रोसेस. देखिए आपने डेटा लिया एंड बर्ड मॉडल को दे दिया, कॉन्फ़िगरेशंस मेंशन है आपके पास अभी, जस्ट देखिए वी हैव सीन
कि we are having 12 layers, and there are certain attention mechanism, certain input sequences, that much you can give in a form of a token. So that's what you have given to the bird. Okay, bird की यहाँ पर हो गई है pre training, and in the pre training you applied MLM, यानी कि मास्किंग की बात करी है आपने, एंड नेक्स्ट सेंटेंस भी जो है, सेंटेंस प्रिडिक्शन भी आपने यहाँ पर आप कह रहे हो दैट इज ऑल्सो बीन डन, ये हो चुका है सब। ठीक है, तो मास्किंग नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन दैट इज व्हाट डन इन द प्री ट्रेनिंग, ये हो गया। नाउ ये मेरा मॉडल जो है वो तैयार है काम करने के लिए। Now it is ready. And what was present in the model? The only thing is, in the model you are available with the encoders, या आपके पास अवेलेबल है। तो ये उनकी 12 लेयर्स बनाई गई है एनकोडर्स की, यही वो कह रहा है इन द टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, आप देख सकते हैं वी आर हैविंग ट्रांसफार्मर ब्लॉक, और ट्रांसफार्मर में एनकोडर्स हैं, तो वी आर हैविंग 12 ब्लॉक्स फॉर द एनकोडर्स। ठीक है, साइज जो है वो 768 का है। ओके, फीचर डायमेंशन हिडन साइज इट कैन टेक 768। उसमें आपने क्योंकि 12 ट्रांसफार्मर हैं तो 12 अटेंशन हेड है। एवरी ट्रांसफार्मर विल बी हैविंग अ अटेंशन मैकेनिज्म। ओके, सो 12 के पास ये 12 अटेंशन है। ओके, एंड देन वोकैबलरी द मैक्स जो साइज है आप जो दे पा रहे हैं वोकैब साइज, वो 30,522 का, दैट इज अ वोकैब साइज जिस पर ये ट्रेन हुआ है। यानी 30,512 जो वर्ड्स हैं उस माई बर्ड मॉडल इज हैविंग अ नॉलेज ऑफ देम, इतने का वोकैब जो है वो बन पाया है इस पर माई मॉडल इज हैविंग। in general, if you are having a huge amount of data, when you use your own either machine learning or any deep learning model, you also define the vocab size. For example, you say 5,000, 10,000, ऐसा करके आप vocab size देते हो। ठीक है, you apply TF-IDF vectorizer, ये भी आप करते हैं। ठीक है, तो आप vocab size देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 30,000 की vocabulary, इतना जो डेटा बेस है, my BERT model is having a knowledge of them. Okay, it's a huge vocab ना, 30,522 is huge vocabulary. ओके, तो हुआ क्या होगा, व्हाट हैपन, यानी कि आपका टेक्स्ट होगा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो कि अनसुपरवाइज लर्निंग है, ये तो जैसे अनसुपरवाइज लर्निंग, ये टेक्स्ट होगा और आपने उसको टोकन एंड देन वर्ड पीस टोकन ये करके आपने वोकैब क्रिएट करा होगा। ओके, एंड दिस वोकैबलरी यू हैव गिवन टू द बर्ड फॉर द प्री ट्रेनिंग। ओके, दैट्स व्हाट यू हैव डन, ये दिया है आपने बर्ड को। और यहाँ पर वही CLS एंड SEP वर अप्लाइड, एंड रेस्ट यू आर हैविंग ऑल दोस टोकन्स, प्री वर्ड पीस टोकन्स अवेलेबल, ये आपने दिया है बर्ड को फॉर द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके फाइन, तो जो सीक्वेंसेस बन रहे हैं वो तो 512 के ही बनेंगे, आपके पास वोकैब भड़ी कितनी भी बड़ी हो, इट डजंट मैटर, 512 के इनपुट सीक्वेंस बनेंगे। Okay, so you have given all these things in a sequence of 512, ये दिया आपने, मेरा मॉडल ट्रेन हो गया इस पर। अब आपने इसमें मास्किंग भी यू डिड अप्लाइड, एंड सेंटेंस ए एंड सेंटेंस बी का जो प्रिडिक्शन वाली बातें थी दैट इज ऑल्सो यू हैव डन। तो माई मॉडल इज नाउ हैविंग अ नॉलेज ऑफ वर्ड्स, और आपकी जो प्रोसेसिंग हुई है वो लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट हुई है, यानी वो कंटेक्स्ट समझता है। नाउ माई मॉडल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेटा। ठीक है, अब इसको डाउनस्ट्रीम टास्क के लिए यूज कर लीजिए। इफ इट अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट, इफ इट इज हैविंग द नॉलेज ऑफ वर्ड्स, तब आप लगा दीजिए से सेंटिमेंट वगैरह वगैरह के लिए अप्लाई कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, दैट्स व्हाट यू कैन डू, एंड हियर वी आर डूइंग दिस, परफॉर्मिंग द सेम थिंग। ओके फाइन, तो भाई मेरे पास बर्ड सीक्वेंस क्लासिफिकेशन एंड बर्ड टोकनाइजर विच आई टुक, तो ये प्री ट्रेन मॉडल है बर्ड के अंदर। ओके, विच कैन be used to perform the classification of text. Okay, it's a pre-trained only. Tokenizer अभी आपको बता ही दिया मैंने what it do. Torch framework है, okay, which can apply, yeah, which can perform tensor operations, tensor
यानी कि आप जान टेंसर ऑपरेशंस वही आपका जो है डिफरेंशिएशन। एंड डिफरेंशिएशन वाई यू हैव टू डू, आप ये जानते हैं ना, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू। तो डिफरेंशिएशन हो रहा है ना। ऑलराइट, सो जब ट्रेनिंग होगा, व्हेन द ट्रेनिंग इज बीन डन, तो ये सब एडजस्टमेंट होगा वेट्स का, तो ये टेंसर ऑपरेशंस होंगे। दीज आर कॉल्ड एज टेंसर ऑपरेशंस। सो आइदर यू कैन यूज टेंसर फ्लो, आइदर यू कैन यूज टॉर्च, पाई टॉर्च, वट एवर, दोनों फ्रेमवर्क हैं। ओके, टॉर्च मैंने देखा अब ज़्यादा यूज़ हो रहा है, टेंसर फ्लो भी हो रहा है। टेंसर फ्लो गूगल का है, टॉर्च पाई टॉर्च मेटा का है। ओके फाइन। एंड दिस टोकनाइजर यू आर यूजिंग अनकेस वाला आप लेके चल रहे हैं। आपने देख लिया अनकेस का मतलब ऑल आर लोअर केस, ठीक है। तो बोथ द मॉडल्स यू हैव लोडेड and then you have given the text as an input, that is the movie was amazing, you perform the tokenization of it and you are returning the tensors for it, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको वर्ड पीस में कन्वर्ट कर लिया, सब कुछ पूरा काम परफॉर्म हो गया। ओके, वी एडेड द एडिशनल टोकन्स ऑल्सो, उसकी टोकन वोकेबलरी बन के तैयार हो गई, पैडिंग वेडिंग सब कर दी हमने। ओके, तो दोज पीपल हु नो अबाउट आर एन एन एल एस टी एम बाई एल एस टी एम, उनको ये अप्रोच पे कई बार अपनी क्लासेस में बता चुका हूँ। इतना काम, ये पैडिंग एंड ट्रंकेशन एंड सीक्वेंस को प्रॉपर बना लेना एंड ऑल दिस थिंग्स ना, ये सब आता है। एंड देन फिर आपने क्या करा, इट विल रिटर्न द टोकनाइज्ड इनपुट्स एज PyTorch tensors, making it compatible for the BERT model which expects the input in tensor form only। ठीक है, इनपुट वो टेंसर में लेना चाहता है, वो एनकोडर रिप्रेजेंटेशन है ना, तो वो टेंसर ही है। ओके, so we did performed here the tokenization, we are converting it into a tensor format। Okay, that's what it said, tensor pt, that means it will return the inputs into PyTorch tensors। pt का मतलब ये PyTorch tensor, p का मतलब PyTorch, t का मतलब tensor, PyTorch tensors। Okay, making it compatible for the BERT model that expects the input in tensor format only। Okay, so tensors is high dimensional data ना। टेंसर ही होता है ना, पहले तो अपना होता है स्केलर, फिर होता है वेक्टर, फिर होता है मैट्रिक्स, फिर होता है टेंसर। सो टेंसर इज हाई डायमेंशनल डेटा, सो इट कन्वर्ट्स योर टेक्स्ट इनटू हाई डायमेंशनल डेटा। ओके, दैट इज एक्सपेक्टेड हियर। एंड इनपुट आप मॉडल को दे दो फिर। माई मॉडल वॉज क्लासीफायर। ओके, सो ऑलरेडी प्री ट्रेन क्लासिफिकेशन मॉडल है, तो यूज कर लो डायरेक्टली, कुछ इशू नहीं है। सो द मॉडल हियर, ये आपने जो टोकन्स हैं ये जो है टेंसर वाले, ये आपने पास करे सिक्वेंशियल मॉडल को। ओके, एंड इट विल गिव द आउटपुट इन लॉजिट्स। लॉजिट्स वो 0 1, ठीक है, दैट इज सिग्मॉइड। तो सिग्मॉइड में वैल्यू जीरो बिटवीन 0 to 1 होती है। ओके, सो नियर टू 0 होगा, फॉर एग्जाम्पल 0.1, तो आंसर विल बी 0। नियर टू 1 होगा, जैसे 0.9, तो आंसर विल बी 1। ठीक है, तो इस तरीके से द बर्ड विल रिटर्न अ डिक्शनरी लाइक ऑब्जेक्ट that is been in like for the logits representation and for binary classification it is having positive negative ऐसा करके आता है। तो logits की दो वैल्यू होगी, logits हैं तभी, ठीक है, टू वैल्यू विल बी देयर। okay, so I am asking in this particular code that the movie is amazing। all right, so I want to perform बाइनरी क्लासिफिकेशन फॉर दैट, किसका सेंटिमेंट क्या मुझे निकल कर आ रहा है। ओके, तो भाई ऐसा है, रिजल्ट वो दे देगा आपको। देन यू हैव टू अप्लाई आर मैक्स। आई होप अगेन आर मैक्स इज समथिंग ये न्यू नहीं है आपके लिए, बिकॉज इट विल गिव द रिजल्ट दैट इज बिटवीन 0 to 1। when you give when you give a tensor to the model, so model always return you a value which lies between 0 to 1। यही करता है वो, हर कोई यही करता है। जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन है ना, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ही आउट किसी उसी की तरह ही इट्स गिविंग यू द रिजल्ट। लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऑल्सो आउटपुट्स यू अ वैल्यू बिटवीन 0 to 1। ओके, इफ योर वैल्यू इज लेस देन 0.5, okay, if your value is less than 0.5, then the output is 0।
एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 0.5 देन द आउटपुट इज 1. ठीक है, वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 देन द आउटपुट इज 1, ऐसा आता है. अब यदि आप ये जीरो को पॉजिटिव कह रहे हो, वन को नेगेटिव कह रहे हो, तो वो अपनी मॉडल की खुद की सेल्फ की इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है, व्हाट इट इज ट्राइंग टू से. ठीक है, उसका खुद का अपना मैटर है. ऑलराइट, अब टू क्लासेस हैं, या तो जीरो करेगा या वन रिटर्न करेगा. आप आर्ग मैक्स में यही कर सकते हो. ठीक है, सो हियर वी आर प्रिंटिंग द प्रिडिक्शन. जीरो कुड बी नेगेटिव सेंटीमेंट, वन कैन बी पॉजिटिव सेंटीमेंट, ऐसा कुछ जो है हमें निकल के आ सकता है. ठीक है, सो द मूवी वॉज अमेजिंग, द आउटपुट टेंसर कुड बी लाइक वन, इंडिकेटिंग दैट द सेंटेंस बिलोंग टू पॉजिटिव. ठीक है, सेंटेंस इज अ पॉजिटिव सेंटीमेंट, ऐसा जो है आप निकाल सकते हैं. तो आर्ग मैक्स में ये यूज करके आप आउटपुट प्रिंट करोगे तो अकॉर्डिंगली आपको जो है वो मिल जाएगा. फाइन, सो आई थिंक हियर आई गेट द आंसर एज ज़ीरो. आई गेट द आंसर एज ज़ीरो. तो वही मैंने कहा था आपसे कि क्या अंडरस्टैंडिंग बन रही है. उसने ज़ीरो दिया. ज़ीरो का मतलब हो सकता है वो पॉजिटिव समझ रहा हो, वन का मतलब नेगेटिव नेगेटिव समझ रहा हो. बिकॉज द वर्ड इज लाइक अमेजिंग ना, मूवी वॉज अमेजिंग, तो ऑब्वियसली सेंटिमेंट इज पॉजिटिव. ओके, सो इट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर मॉडल. ज़ीरो का पॉजिटिव हो गया, वन का नेगेटिव हो गया, ऐसे करके ये काम करता है. ओके फाइन, तो भाई ऐसा है, ये कोड मैंने आपको अभी यहाँ पर लगा कर बताया है अटेंशन मैकेनिज्म के लिए. तो क्योंकि अब नेक्स्ट वही है ट्रांसफार्मर, मैं पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा ट्रांसफार्मर्स के बारे में. ओके, फर्स्ट आई नीड टू टॉक अबाउट द ट्रांसफार्मर, देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द अटेंशन मैकेनिज्म. ओके, काफ़ी कुछ है मेरे पास यहाँ पर, एंड आई विल मेक द थरो ऑफ इट. ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे. Okay, so just what we have seen so far. Yes, we are using encoder representations. These all are the encoders. तो 12 layers हैं हमारे पास. Okay, we are having 12 layers in base and 12 attention mechanism है. Okay, so for example, this is layer 1, this is layer 2, this is layer 3, and we are having 12 layers साइड बाय साइड लगी हुई है. और हर एक लेयर के अंदर एक अटेंशन, दिस इज वन अटेंशन, वन अटेंशन, वन अटेंशन, वन अटेंशन, वन अटेंशन. तो 12 अटेंशन मैकेनिज्म आर देयर. ओके, सब में एक एक अटेंशन लगा दिया. ऑलराइट, आपने वो कैप साइज रखा 30,000 का, इतना रखा आपने. आपने इनपुट दिया इसको, कितने का सीक्वेंस बना के रखे हैं अपन, 512 का सीक्वेंस बना के रखे, इसको इनपुट दिया. टोटल 1 मिलियन, कुछ मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पर ये ट्रेंड है. एंड ऑब्वियसली लेयर्स हैं, तो इसमें न्यूरॉन्स होंगे, न्यूरॉन्स में वर्ड वेट एंड बायस होगा, तो करीबन मिलियंस ऑफ जो है आपके पास पैरामीटर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं. ठीक है, अब आपने टेक्स्ट दिया, उसको टोकन करा, टोकन को वर्ड पीस टोकन करा. वर्ड पीस टोकन करने के बाद आपको इसने फिर बाद में बोला कि ठीक है, वर्ड पीस टोकनाइजेशन हो गया, एंड देन यू कैन गिव इट टू द मॉडल एनकोडर. उसमें भी फिर वो कह रहा है भाई एक काम करो, मॉडल के अंदर ट्रेनिंग डाउनस्ट्रीम कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो, तो यू कैन डू वन थिंग इज, इसको टेंसर में बदलो आप, या एनकोडर रिप्रेजेंटेशन के अंदर बदलो आप. ठीक है, टेंसर तो भाई टॉर्च ले रखी थी हमने, तो टॉर्च टेंसर में बदल देगा इसे, एंड देन यू गिव एज एन इनपुट, और फिर वो यहाँ पर ट्रेन होते होते वो आपको आउटपुट दे देगा. तो फाइन ट्यूनिंग और ट्रांसफर लर्निंग में अंतर होता है. फाइन ट्यूनिंग में क्या होते हैं, वी आर एडजस्टिंग द वेट्स ऑफ द मॉडल. दैट इज फाइन ट्यूनिंग, मतलब ऑलरेडी इसके वेट्स हैं, बट वी आर एडजस्टिंग द वेट्स ऑफ द मॉडल. ऑलरेडी प्री ट्रेंड मॉडल के वेट्स को बदलना, कुछ लेयर्स के, नॉट एवरी लेयर, ये भी मैं नहीं कह रहा. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर 12 लेयर्स अवेलेबल, एंड इन केस, अभी यहाँ क्लियर तो बात नहीं हुई है, इन केस 12 लेयर्स के ही वेट्स बदल रहे हो आप, दैट मीन्स एंटायर वेट्स यू आर चेंजिंग, ये फाइन ट्यूनिंग के अंदर आता है. However, the large language models which we have seen, I have given the training based on them. जैसे मैंने जेमिनाई पर दिया था, लामा पर भी दिया था. We do perform the fine tuning, we do perform the sentiment analysis, but we never train the entire, we never change the entire weights of the layers. ठीक है, वो नहीं करते अपन, जो भी हमारे पास है सबको नहीं करते, some layers we do change. ठीक है, कुछ लेयर्स के करते हैं, पूरे के तो नहीं कर सकते, तो बहुत बड़ा मॉडल है. ठीक है, सो सम लेयर्स वी चेंज द वेट्स, दैट इज कॉल्ड एज फाइन ट्यूनिंग. ट्रांसफर लर्निंग में क्या होता है, ट्रांसफर लर्निंग में वी डू टेक, मतलब ये मेरा मॉडल है, इससे मैंने वेट ले लिए. नाउ आई एम एडिंग फ्रॉम माई साइड सम लेयर्स अपने आर्किटेक्चर में, और इन्हीं की ट्रेनिंग कर रहा हूं मैं, इन्हीं की ट्यूनिंग कर रहा हूं बस.
आई एम चेंजिंग द वेट्स ऑफ दिस ओनली, बस इसको मैंने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, एंड आई डोंट टच दिस थिंग, इसको हाथ ही नहीं लगाया, आई जस्ट टेक द वेट्स ऑफ दम एंड आई सप्लाइड इट टू दीज लेयर्स, और ट्रेनिंग में इन्हीं को चेंज करूंगा बस, मॉडल मेरा एज इट इज, एज इट इज, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफर लर्निंग। और यदि मैं मॉडल का ही, मॉडल इटसेल्फ के कुछ लेयर्स के वेट्स को यदि चेंज कर दूं, दैट इज कॉल्ड एज फाइन ट्यूनिंग। ये अंतर होता है फाइन ट्यूनिंग और ट्रांसफर लर्निंग। ओके, आई होप यू गॉट इट। फाइन, तो मैं अगली क्लास में ट्रांसफॉर्मर अटेंशन मैकेनिज्म पर आऊंगा। ओके, एवरी क्लास इज नाउ गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द लर्निंग पर्सपेक्टिव। ओके।